درود پاک پڑھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت سیدی سرکار فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا۔ ایک شاعر اور کہتا ہے، پار بیڑے کو لگا دیتے ہیں غوث اعظم، ڈوبی کشتی کو تیرا دیتے ہیں غوث اعظم۔ پار بیڑے کو لگا دیتے ہیں غوث اعظم، ڈوبی کشتی کو تیرا دیتے ہیں غوث اعظم۔ باخدا ایسی کرامت تو دیکھی نہ سنی، پیر اکھڑے تو جما دیتے ہیں غوث اعظم، پیر اکھڑے تو جما دیتے ہیں غوث اعظم۔ میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا۔ منکر نکیر قبر سے یہ کہہ کے چل دیے، سونے دو یہ غلام ہے پیران پیر کا، سونے دو یہ غلام ہے پیران پیر کا، سونے دو یہ غلام ہے پیران پیر کا۔ اب میں آپ کو بتا دوں، سرکار غوث اعظم کا ذکر پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے۔ میرے آقا غوث اعظم کا ذکر، غوث اعظم کا ذکر آپ کی کریلی کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور غوث اعظم کا ذکر ہم کرتے کیوں ہیں؟ غوث اعظم ہے کون؟ غوث اعظم آل رسول ہیں، سید ہیں، اور سید بھی ایسے نہیں، نجیب الطرفین غوث اعظم ہیں۔ کہیں پہ باپ کی طرف سے نسبت ملتی ہے میرے غوث کی اپنے امام حسین سے، اور ماں کی طرف سے نسبت سیدی سرکار غوث اعظم کی ملتی ہے امام حسین کی طرف جا کر کے۔ شجرہ بھی میں آپ کو سنا دیتا دونوں جانب سے، لیکن میں اس کو یہیں پر روکتا ہوں، اس لیے کہ یہ مائک اس لائق نہیں ہے اور آپ کی سماعتیں بھی اس لائق نہیں ہے جو میں آپ کا دل نکال کے آپ کے سامنے رکھوں۔ اگر آپ کی محبت شامل حال رہے گی تو میں آپ سے کچھ باتیں کرنے کی کوشش کروں گا۔ سنتے چلے جائیے گا اسلام کے مقدس شہزادوں، آج دنیا کے اندر میں اگر آپ سے سوال کروں، حضرت علامہ مفتی کونین صاحب قبلہ سے اگر میں اس بات کا مطالبہ، اس بات کا سوال کروں، مفتی صاحب ذرا یہ تو بتا دیجئے گا، دنیا کے اندر اگر کوئی پوری دنیا کے انسانوں کا باپ اگر کوئی ہے تو ہمیں اس کا نام بتائیے، تو یہ ایک ہی ذات کا نام بتائیں گے، یہ ایک ہی شخصیت کا نام بتائیں گے۔ اس شخصیت کا نام کوئی اور نہیں بلکہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے۔ اگر میں آپ سے اس بات کا سوال کروں، اے لوگوں ذرا یہ بتائیے آپ کے باپ کا نام کیا ہے، تو آپ بھی یہی کہیں گے ہمارے باپ کا نام حضرت آدم ہے۔ حضرت مولانا عاقب صاحب قبلہ سے اگر آپ پوچھیں گے کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے تو حضرت بھی یہی جواب دیں گے ہمارے باپ کا نام کوئی اور نہیں بلکہ آدم ہے۔ اور پوری دنیا کے نسل انسانیت کا باپ اگر کوئی ہے تو وہ آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے۔ لیکن آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، جب میرے پروردگار عالم نے حضرت آدم کو پیدا کیا تھا، اب حضرت آدم کو جب زمین پہ بھیجا تھا تو آدم کا صرف ایک ہی مشن تھا کہ اسلام آگے کو بڑھتا رہے، اسلام فروغ پاتا رہے، اسلام کی قندیل روشن ہوتی رہے، اسلام کا چراغ روشن ہوتا رہے۔ لیکن آج بھی لوگ اسلام کو مٹانے کی بات کرتے ہیں، آج بھی لوگ اسلام کو مٹانے کی پلاننگ کرتے ہیں، آج بھی لوگ اسلام کو مٹانے کا مشن چلا رہے ہیں۔ لیکن کل بھی لوگ اسلام کو مٹانے کا مشن چلایا کرتے تھے، کل بھی لوگ اسلام کو مٹانے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ لیکن میرے رب نے جب اپنے پیغمبر حضرت آدم کو زمین پہ بھیج دیا تو آدم کا صرف ایک ہی مشن تھا کہ اسلام آگے کو بڑھتا رہے، اسلام فروغ پاتا رہے، اسلام ترقی پاتا رہے۔ ظالم طاقتیں سامنے آ گئی، اب ہم اسلام کو مٹا دیں گے۔ جب حضرت آدم کوچ کر کے دنیا سے چلے گئے، جب حضرت آدم کا انتقال ہو گیا، جب حضرت آدم رحلت کر کے دنیا سے چلے گئے تو ظالم طاقتیں سامنے آ جاتی ہے، اب ہم اسلام کو مٹا دیں گے، ہمیں اسلام کو مٹانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اب ہم اسلام کے درخت کو اکھاڑ کے پھینک دیں گے، اب ہمیں اسلام کے درخت کو اکھاڑنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن حضرت آدم جب دنیا سے گئے تھے تو آدم کے پاس میں اس دین کو سینچنے کے لیے، اس دین کے درخت کو سینچنے کے لیے، اس دین کے پودے کو سینچنے کے لیے کوئی اور نہیں آتا ہے، بلکہ میدان میں ان کے بعد میں ان کا بیٹا حضرت شیس آ جاتا ہے۔ حضرت شیس علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم جب میدان میں آتے ہیں وہ اپنے بابا جان حضرت آدم کے مشن کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں، اپنے بابا جان حضرت آدم کے مشن کو آگے بڑھاتے ہیں، اسلام کی قندیل کو روشن کرتے ہیں، اسلام کے چراغ کو روشن کرنے میں لگ جاتے ہیں، اسلام کی کشتی کو کاندھا لگانے میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن ظالم طاقتیں پھر سامنے آتی ہے کہ اب ہم اسلام کو مٹا دیں گے۔ جب حضرت شیس آئے دنیا سے چلے گئے، ظالم طاقتیں، مادی طاقتیں پھر سامنے آ جاتی ہے، اب ہم اسلام کو مٹا دیں گے، اب ہمیں اسلام کو مٹانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس لیے تھے آدم آئے تھے، آدم بھی چلے گئے، ان کے بیٹے شیس آئے تھے، شیس بھی چلے گئے، اب ہم اسلام کو مٹا دیں گے۔ یکے بعد دیگرے حضرت
सलावत शीस अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के बाद के लेकर के मेरे आका पैगंबर इस्लाम मदनी मक्की सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक 1,24,000 2,24,000 अंबिया और रसूल आते रहे और इस्लाम की कंदील को रोशन करते रहे, इस्लाम के चिराग को रोशन करते रहे, इस्लाम के झंडे को बुलंद करते रहे, इस्लाम के अलम को ऊंचा करते रहे, इस्लाम के दरख्त को अपने खून से सींचते रहे। लेकिन अंबिया आते रहे जाते रहे, रसूल आते रहे जाते रहे और जालिम ताकतें सामने हर बार में आती रही, हम इस्लाम को मिटा देंगे। लेकिन आखिर में अगर कोई और आता है, अगर आखिर में कोई और आता है तो वो कोई और नहीं बल्कि मुसलमानों का पैगंबर मदनी मक्की सरकार मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं। जब मेरे आका आमना का लाल अब्दुल्ला का लख्ते जिगर रसूलों का सुल्तान जब मैदान में आता है तो इस्लाम की कंदील को इतना रोशन कर देता है मेरा पैगंबर, इस्लाम के झंडे को इतना बुलंद कर देते हैं मेरे नबी कि मुस्तफा आए थे मक्के की मुकद्दस जमीन पे, लेकिन आज भारत के अंदर भी इस्लाम नजर आ रहा है। आप कहोगे मौलाना अरे इस्लाम तो आया था मक्के की मुकद्दस जमीन पे, लेकिन हमारे गांव करेली के अंदर कैसे आ गया या शहर बरेली के अंदर कैसे आ गया? तो समर रज़वी आपके सवाल का जवाब 30 सेकंडों में देता हुआ नजर आएगा। अरे लोग कभी किसी से अगर किसी का नारा लगवाते हैं तो कभी तलवार के नोक के जोर से लगवाते हैं, कभी किसी पर्ची और भाले की नोक के जोर से लगवाते हैं, लेकिन जब मेरे पैगंबर आए थे मक्के की मुकद्दस जमीन पे, पैगंबर इस्लाम ने इस इस्लाम को फैलाने के लिए किसी तीर और तलवार का सहारा नहीं लिया था, किसी पर्ची और भाले का सहारा नहीं लिया था, किसी बम और बारूद का सहारा नहीं लिया था, बल्कि मेरे पैगंबर तो मक्के की मुकद्दस जमीन पे आए थे, मेरे पैगंबर तो मक्के की अजीम शान जमीन पे आए थे। मेरे मुस्तफा ने इस इस्लाम की कंदील को इतना रोशन कैसे कर दिया? ये भारत के अंदर 7 समंदर पार कैसे आ गया? तो ये इस्लाम किसी और से नहीं बल्कि हुस्न अखलाक के जरिए आया है। मेरे मुस्तफा का अखलाक ऐसा था कि अगर पैगंबर इस्लाम से कोई एक मर्तबे बात कर लेता था तो मेरे आका के कदमों में गिर के मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ता हुआ नजर आता था। जब मेरे मुस्तफा आए थे मैदान में और मुस्तफा को एक आने के लिए मुफ्ती साहिब बैठे हुए हैं, मेरे मुस्तफा को भी कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के ज़िम्न में जो मेरे रब ने कलाम रब्बानी के अंदर इरशाद फरमा दिया है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, तमाम चीजें फना हो जाएंगी, बाकी रहने वाली सिर्फ परवरदिगार आलम की जात है। इसी कुरान के फरमान के मुताबिक मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ एक आन के लिए मौत आई है। मेरे आका मेरा ईमान बोलता है और तमाम तर उलमा का ईमान और ईकान है। मेरे मुस्तफा कल भी जिंदा थे, मेरे मुस्तफा आज भी जिंदा है, मेरे मुस्तफा सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। अरे जो लोग ये कहते हैं मुस्तफा मर के मिट्टी में मिल गई, मैं उन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ। अरे तुम मेरे मुस्तफा के बारे में कहते हो मुस्तफा मर के मिट्टी में मिल गए, मेरे मुस्तफा मर के मिट्टी में नहीं मिले हैं, बल्कि मेरे मुस्तफा जैसे कल जिंदा थे वैसे ही आज जिंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। जो लोग ये कहते हैं मुस्तफा मर के मिट्टी में मिल गए, मेरे मुस्तफा की शान तो बहुत दूर है। अरे मुस्तफा ही नहीं बल्कि मुस्तफा का कुरान जिंदा है, मुस्तफा का दीन जिंदा है, मुस्तफा का इस्लाम जिंदा है। और सिर्फ मुस्तफा का इस्लाम ही नहीं बल्कि मेरे परवरदिगार आलम के बरगुज़ीदा बंदे हजरत अब्दुल कादिर गौसी आज़म जीलानी बगदाद के अंदर जिंदा है, राजस्थान की मुकद्दस जमीन पे गरीब नवाज जिंदा है, बाराबंकी के अंदर देवा शरीफ के अंदर हजरत बारी से देवा जिंदा है, महरारा मुकद्दसा की जमीन पर तमाम सादात इकराम जिंदा है, बरेली की मुकद्दस जमीन पर आला हजरत जिंदा है और मेरे पीर ताजुल शरिया जिंदा है। और हमारा ईमान तो आला हजरत के इस शेर पर है। मेरे मुस्तफा के जीने के ताल्लुक से आला हजरत ने बहुत पहले कह दिया था, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौस, नाराए हैदरी, नाराए तकबीर। जब मेरे मुस्तफा आए और मुस्तफा ने जब रहिलत की दुनिया से मुस्तफा कूच करके चले गए, अब जालिम ताकतें फिर जन्म ले लेती हैं, जालिम ताकतें फिर सामने उभर के आ जाती हैं। अब मुस्तफा आए थे, मुस्तफा चले गए, इस्लाम को मिटा देंगे। इस्लाम का लीडर दुनिया से चला गया है, इस्लाम को मिटा देंगे। इस्लाम का रखवाला दुनिया से चला गया है, इस्लाम को मिटा देंगे। इस्लाम को देखभाल करने वाला दुनिया से चला गया है, अब हम इस्लाम को मिटा देंगे। लेकिन जब मेरे मुस्तफा गए थे तो मुस्तफा के बाद में इस्लाम को बचाने के लिए, इस्लाम की कंदील को रोशन करने के लिए कोई और नहीं आता है बल्कि यारे गार हजरत सिद्दीक़ अकबर आ जाते हैं। और एक बात और सुन
सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, जब मेरे मुस्तफा ने इस्लाम का, अपनी नबुव्वत का जब ऐलान किया था, तो सबसे पहले अगर जिन लोगों ने कलमा पढ़ा था वो लोग कोई और नहीं है, वो लोग सिर्फ 4 हैं। उन 4 के नाम मैं आपको बता देता हूं। अगर सबसे पहले मर्दों में अगर किसी ने कलमा पढ़ा था तो किसी और की जात नहीं, हजरत यारेगार सिद्दीक अकबर की जात है। अगर औरतों में सबसे पहला कलमे पढ़ने वाली जात कोई और है तो वो कोई और नहीं बल्कि अम्मी खदीजतुल कुबरा की जात है। अगर गुलामों में सबसे पहला कलमा पढ़ने वाली कोई शख्सियत है तो वो आशिकी का इमाम, इश्क का इमाम हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। और अगर चौथे नंबर पे बच्चों में कलमा पढ़ने वाली अगर कोई शख्सियत थी तो वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि दामाद पैगंबर हसनैन के बाबा हजरत मौलाए कायनात की जात थी। मेरे मौलाए कायनात ने चौथे नंबर पर बच्चों में सबसे पहले कलमा पढ़ा था। ये 4 लोग हैं जिसने मेरे मुस्तफा का सबसे पहले कलमा पढ़ा था। अब सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मेरे मुस्तफा जब दुनिया से गए थे, जालिम ताकतें सामने आ गई, हम इस्लाम को मिटा देंगे। मेरे मुस्तफा के बाद में हजरत सिद्दीक अकबर मैदान में आते हैं और मुस्तफा जाने रहमत के मिशन को आगे बढ़ाते रहते हैं। मुस्तफा जाने रहमत के मिशन को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, लेकिन हजरत सिद्दीक को भी मौत आ गई। सिद्दीक के बाद में एक और शख्सियत आती है जिसने आधी दुनिया पे हुकूमत की थी, 22 लाख मुरब्बा मील पे जिसकी हुकूमत थी, जिसको जमाना हजरत उमर फारूक आजम के नाम से याद करता है। वही उमर फारूक आजम, अगर शैतान के सामने उमर का नाम ले दो तो शैतान अपना रास्ता चेंज करता हुआ नजर आता है, अपना रास्ता बदलता हुआ नजर आता है। उनके बाद में अगर कोई आता है तो ज़ुन्नूरैन उस्मान गनी आते हैं चौथे नंबर पे इस इस्लाम की कंदील को रोशन करने के लिए। अगर कोई और आता है तो दामाद पैगंबर हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम आ जाते हैं। और सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, आखिर में अगर इस्लाम को जरूरत पड़ी थी तो इस्लाम की देखभाल करने के लिए, इस्लाम की कश्ती को कांधा लगाने के लिए कोई और नहीं आया था बल्कि हसनैन करीम आए, बल्कि हजरत मौलाए कायनात का शहजादा हजरत इमाम हुसैन आए थे। और करबला के रेगिस्तान में, करबला के तपते हुए रेगिस्तान में अगर हमारे इस्लाम को जरूरत पड़ी थी किसी की कुर्बानी की तो कहीं पे मेरे आका इमाम हुसैन ने अपने खानदान के नन्हे से 6 महीने के अली असगर को कुर्बान कर दिया था। अगर इस्लाम को जरूरत पड़ी थी तो मेरे आका इमाम हुसैन ने अपने 18 साल के अली अकबर की कुर्बानी को पेश किया था। अगर इस्लाम को जरूरत पड़ी थी तो इस इस्लाम के झंडे को जमीन पे गिरने नहीं दिया था, इस्लाम के दरख्त को उखड़ने नहीं दिया था, बल्कि इस्लाम की कश्ती को सहारा लगाने के लिए अगर जरूरत पड़ी थी तो कहीं पे भाई अब्बास के बाजुओं को दे दिया था, लेकिन इस्लाम के झंडे को जमीन पे आने नहीं दिया था। अगर जरूरत पड़ी थी तो कहीं पे 22 साल के कासिम की कुर्बानी को पेश कर दिया था, लेकिन इस्लाम के झंडे को जमीन पे आने नहीं दिया था। और सबसे आखिर में जब यही हमारे इस्लाम को जरूरत पड़ी थी किसी के खून की तो मेरे आका इमाम हुसैन ने अपनी शहादत को पेश कर दिया था, जामे शहादत को नोश कर लिया था, लेकिन इस्लाम के दरख्त को जमीन पे आने नहीं दिया था, इस्लाम की कंदील को बुझने नहीं दिया था, इस्लाम के चिराग को गुल होने नहीं दिया था। अब सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, जब मेरे आका इमाम हुसैन की शहादत करबला के तपते हुए रेगिस्तान में हो जाती है, अब इस्लाम की देखभाल करने के लिए कोई नहीं बचा था, इस्लाम को देखने के लिए, इस्लाम के पौधे को सींचने के लिए कोई नहीं बचा था। यही हमारा इस्लाम बारगाह रब्बुल उला में रो रो के दुआ कर रहा था, मौला अब मुझे देखने के लिए, अब मुझे बचाने के लिए किसी और को भेज दे। मेरे मौला तूने सबसे पहले मेरी हिफाजत के लिए अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद अरबी मुस्तफा को भेजा, उनके बाद में उनके खुलफा को भेजा, उनके बाद में उनके बेटों को भेजा, अपने नवासों को भेजा, लेकिन ऐ मेरे परवरदिगार अब पूरी दुनिया की मादी ताकतें मुझे मिटाने की बात कर रही है। चार जानिब से आवाज आ रही है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण शुमाल जनूब से आवाज आ रही है, हम इस्लाम को मिटा देंगे। हमें इस्लाम को पौधे को उखाड़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम इस्लाम को मिटा देंगे, हमें इस्लाम को मिटाने से कोई नहीं रोक सकता। ये इस्लाम रो रो के बारगाह रब्बुल उला में दुआ कर रहा था, मौला अब मुझे बचाने के लिए किसी को भेज दे। तो ऐसे आलम में इस्लाम की दुआ बारगाह रब्बुल उला में कबूल होती है। और इस इस्लाम को बचाने के लिए मेरे परवरदिगार आलम ने किसी और को नहीं भेजा था, बल्कि मुल्क ईरान के कस्बा जिलान के महिला नीस के अंदर शेख अब्दुल कादिर जिलानी को भेजा था। जब मेरे आका गौसे आजम ने इस इस्लाम की कश्ती को सहारा दिया था, इस इस्लाम के झंडे को जब कांधा लगाया था, तो आज मेरे आका गौसे आजम की देन है, पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का झंडा लहरता हुआ नजर आ रहा है। तभी तो शायर कहता है, पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आजम, डूबी कश्ती को तिरा देते हैं गौसे आजम, खुदा इसी करामत को देखी न सुनी, पैर उखड़े
تو جما دیتے ہیں غوث اعظم.